بیمار ماں اس کے گھر میں تھی۔ وہ ابھی چھوٹا بچہ ہی تھا، مگر حالات نے اسے بڑا بنا دیا تھا۔ چڑیا کا وہ بچہ غریب تو تھا ہی، مگر جنگل میں ٹھنڈ کے موسم نے اس کی زندگی اور بھی مشکل بنا دی تھی۔ ماں، میں کہاں سے آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کے پنکھوں کا علاج کروا سکوں۔ بجتے ہوئے دانتوں کے ساتھ چڑیا کا وہ چھوٹا بچہ پھر سے اڑتا ہے اور کالو کوے کی دکان پر جاتا ہے۔ انکل، مجھے 1 کلو آٹا دے دیں۔ آٹا؟ میرا تو کام ہی آٹا بیچنا ہے۔ یہ لو، 1 کلو پورا ہے اور جلدی سے مجھے 10 روپے دے دو، 10 روپے۔ انکل، میری ماں بہت بیمار ہے اور جب سے جنگل میں ٹھنڈ شروع ہوئی ہے کام بھی بند ہے۔ میں آپ کو پیسے کل دے جاؤں گا۔ ابھے چل، کہاں سے آ گیا صبح صبح ہی میرا موڈ خراب کرنے؟ ایسے کہتے ہوئے کالو کوا چھوٹے چڑیا کے بچے سے آٹے کا بیگ واپس لے لیتا ہے۔ مصیبت میں کسی کی مدد کرنا ہی اصل اچھائی ہے۔ کالے کوے، آپ کسی پر اتنا بھی وشواس نہیں کرتے ہو؟ ایسا کہتے ہوئے وہ اجنبی چڑیا 10 روپے کالو کوے کو دیتی ہے۔ دو اب آٹے کا بیگ، دیکھ کیا رہے ہو؟ گن لو، پورے 10 روپے ہیں۔ مجھے تو پیسے چاہیے، پیسے، کوئی بھی دے، یہ لے آٹا۔ کوکو حیران ہوتے ہوئے اس چڑیا کو دیکھ رہا تھا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ آپ کون ہیں؟ چلیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ پھر کوکو اس چڑیا کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ سامنے میرا گھر ہے۔ میں کل ہی اس جنگل میں نئی آئی ہوں اور میں نے اس جنگل میں برگر کی دکان کھولی ہے۔ آپ نے میری مدد کی، آپ مجھے جانتی بھی نہیں ہو۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ مما کہتی ہیں کہ کسی کی مدد کرتے سمے یہ مت سوچو کہ آپ اسے جانتے ہو یا نہیں۔ آپ مصیبت میں تھے، میں نے آپ کی مدد کی۔ جب کبھی مجھ پر مشکل سمے آئے گا تو آپ میری مدد کر دینا۔ کیسی چل رہی ہے آپ کی برگر کی دکان؟ ابھی کام نیا ہے، کچھ زیادہ نہیں۔ آپ کیا کرتے ہو؟ میری ماں بیمار ہے، پاپا کے مر جانے کے بعد آلو بیچ کر ان کے علاج پر لگا دیا اور اب کسی کام کی کھوج میں ہی ہوں۔ کیا آپ کام کرو گے؟ پھر تو میرا کام اچھے سے چل سکتا ہے، ہم مل کر اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو میری ساری پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ آپ کل صبح میرے پاس آ جانا، میں اکیلی بہت مشکل سے یہ سب کرتی ہوں۔ اب مجھے جانا ہوگا، ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر کوکو اپنا آٹے کا بیگ لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ وہ ضرور کسی اچھی ماں کی بیٹی ہوگی، تبھی تو اسے دوسرے پکشیوں کا احساس ہے۔ مما، میں کل سے اس کے ہاں ہی کام پر جاؤں گا۔ میں محنت سے کام کروں گا اور پھر اپنی مما کا علاج کرواؤں گا۔ ہاں بیٹا، مجھے پورا وشواس ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھا، سچا اور محنتی پکشی ہی بنے گا۔ پھر وہ ماں بیٹا روٹی کھا کر سو جاتے ہیں۔ دوسرے روز کوکو اس چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے۔ میں نے دیر تو نہیں کی آنے میں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی بھی گراہک نہیں آیا۔ آپ مجھے میرا کام بتائیں۔ میں برگر بناتی جاؤں گی اور آپ برگر گراہکوں کو دینا، ایسے مل کر ہم اپنا کام اچھے سے کر لیں گے۔ پھر وہ کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی بھی گراہک ان کی دکان پر نہ آیا تھا۔
नया काम चलने में देर तो लगती है, मगर जो पक्षी भी मेरे पंखों का बना हुआ बर्गर खाएगा अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। फिर एक बुलबुल वहां आती है। एक चिकन बर्गर कितने का है? 2 रुपए का है बर्गर, क्या लगाऊं मैं आपके लिए? हाँ हाँ लगा दो, पैसे तो ज्यादा नहीं है, अब खाकर देखती हूँ कि बर्गर कैसा है। फिर कुकू बुलबुल को एक बर्गर ला कर देता है, जिसे बुलबुल मजे मजे से खा लेती है। सच भाई मानना पड़ेगा, बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट था। बुलबुल बर्गर खाकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप कहें तो मैं बर्गरों की होम डिलीवरी देना शुरू करता हूँ। ऐसे हमारे बर्गर ज्यादा बिकेंगे। मुझे भी आपका ये उपाय अच्छा लगा। मैं आज ही जंगल के टीवी पर इश्तिहार चलवाता हूँ, ऐसे हमारी दुकान दिनों में चल जाएगी। फिर कुकू ऐसा ही करता है। अब आपके पहाड़ों वाले जंगल में नदी के पास बर्गर पॉइंट बन गया है। आपको अब बर्गर खाने के लिए दूसरे जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। होम डिलीवरी के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। बर्गर, मुझे तो पता ही नहीं है कि हमारे जंगल में भी कोई बर्गर की दुकान है। मैं अभी अपने लिए एक जिंगर बर्गर का ऑर्डर करती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपने लिए एक बर्गर का ऑर्डर कर देती है। ये हमारा पहला ग्राहक है होम डिलीवरी का। आप देखना अब इतने ग्राहक आएंगे कि हमसे संभाले नहीं जाएंगे। कुकू गौरी का बर्गर लेकर चला जाता है। फिर क्या था कि फोन की तो घंटी ही नहीं बंद होती, ऑर्डर ही ऑर्डर। कुकू गौरी का बर्गर देकर अभी आया ही था कि ये ले कुकू, एक बर्गर तोते का है और दूसरा कबूतर का। आप जल्दी से ये बर्गर दे आएं और फिर बाद में आपको दूसरे जंगल भी जाना है, वहाँ से 5 और ऑर्डर आ गए हैं। मैं ना कहता था अब हमसे ऑर्डर पूरे नहीं होंगे, इतना काम चलेगा हमारा। फिर कुकू सारा दिन काम करता है। वो कबूतर को बर्गर देता है, तोते को भी होम डिलीवरी पहुंचा देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुकू अपने काम से ढेर सारे पैसे जमा कर लेता है। मम्मा चलें, बाहर ऑटो खड़ा है। मगर कहाँ बेटा? आपके पंख का इलाज करवाने, मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं। फिर कुकू अपनी मम्मा को ऑटो में बिठाकर चीलती के अस्पताल में ले जाता है और वहाँ से उसका इलाज करवा लेता है। मैंने जरूरी इंजेक्शन लगा दिए हैं, 3 से 4 दिन लगेंगे और आप फिर से उड़ने लगेंगी। कुकू बेटा, अब मुझे अपनी दोस्त की दुकान पर तो लेकर जाओ, मैं भी तो देखूं कौन है वो चिड़िया जिसने हमारी इतनी मदद की है। फिर कुकू ऑटो अपनी दुकान की तरफ ले जाता है। कुकू, मैं बताऊं ये कौन है? बताएं तो। ये आपकी मम्मा है ना, मैंने देखकर ही पहचान लिया। आपका नाम क्या है बेटी? आंटी, मेरा नाम डोली है और मैं बिना माँ बाप के पली बढ़ी हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। आज से मैं आपकी माँ हूँ बेटी, मुझे मेरी बेटी मिल गई। और आपको मम्मा, मेरा कुकू कैसा है? ये सुनकर डोली शर्मा जाती है। आपका बेटा बहुत मेहनती है माँ जी, इनकी वजह से मेरी ये दुकान दिनों में चल पड़ी। फिर चिड़िया अपने बेटे की शादी डोली से कर देती है और वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, मेहनत करने से हालात बदले जा सकते हैं। अपने काम में हमेशा सच्चे दिल से मेहनत करो। ये कहानी एक कव्वे और एक कव्वी की है। कव्वे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गौरी कव्वी था। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कव्वी से बहुत डरता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी।
गौरी, जो भोजन मैं सुबह लाया था तुमने सारा ही खा लिया, मेरे लिए नहीं रखा क्या? उस भोजन से तो मेरा पेट नहीं भरा, मैं तुम्हारे लिए क्या रखती। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? आवारा नखट्टू लफंगे, तुमने मेरे पेट को कुआं कहा। मैं अब एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी अपने मैके जा रही हूँ। ये वो बात थी जिससे कालू कौवा बहुत डरता था। छोटी सी भी बात होती गोरी कौवी उसे मैके चले जाने का कहकर डराती थी। गौरी, मेरी सुंदर पत्नी जी, बस एक बार माफ कर दो। कुआं तो मेरा पेट है जो तुमसे भोजन मांग रहा हूँ। मेरी शादी तो पहले ही बहुत मुश्किल से हुई थी। प्लीज मुझे छोड़कर मैके ना जाना। अच्छा अच्छा, अब बस कर जाओ। नहीं जाती मैं, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है गौरी? मुझसे नहीं होते घर के कामकाज, मुझे एक नौकरानी ला कर दो। तुम्हें तो पता है गौरी, मैं गरीब सा कौवा हूँ। मैं नौकरानी कैसे रख कर दे सकता हूँ तुम्हें? अगर नहीं नौकरानी रख कर दे सकते तो मुझसे ब्याह क्यों किया था? फिर मैं अपनी माँ के पास ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए। क्या आपकी नजर में है कोई? कालू भैया, मैं तो नहीं जानती, परंतु कल कबूतर मेरे पास आया था। वो बता रहा था कि एक कौवी आई है इस जंगल में, वो कोई काम ढूंढ रही है। आप कबूतर के पास जाएं। फिर कालू कबूतर के पास चला जाता है। आओ आओ कालू कव्वे, कैसे आए हो? यार कबूतर, मुझे अपने घर के काम के लिए किसी नौकरानी की तलाश है। चिड़िया बता रही थी कि बहुत ठीक समय पर आए हो कालू। ये पिंकी है, नई आई है इस जंगल में, इसे कोई काम चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहिब, मुझे अपने घर में काम पर रख लें, मैं सारे काम कर सकती हूँ। तनख्वाह कितनी लोगी? नहीं जी, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, बस रहने के लिए छत मिल जाए यही बहुत है, और 2 वक्त का भोजन। कालू तो ये सुनकर बहुत खुश होता है। तो फिर चलो मेरे साथ। कालू कौवा पिंकी को साथ लेकर घर चला जाता है। आपका घर तो बहुत सुंदर है। कालू, ये कौन है? गौरी, ये काम वाली है। आज से ये हमारे घर के सारे काम किया करेगी। कोई काम वाम आता भी है तुम्हें? और नाम क्या है तुम्हारा? मालकिन जी, मेरा नाम पिंकी है और मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। मैं तो आपके बालों में कंघी भी कर दिया करूँगी, टांगे भी दबा दिया करूँगी आपकी। जाओ फिर रसोई में जाकर मेरे लिए 1 कप गरम गरम चाय का लेकर आओ। पिंकी रसोई में चली जाती है। मजे की बात ये है कि मुफ्त में मिली है ये कौवी। मुफ्त में? वो कैसे? इस जंगल में नई आई है ये, इसके पास घर नहीं है। इसे रहने के लिए एक कमरा और भोजन देंगे, और कुछ नहीं लेगी ये। फिर तो बहुत अच्छी नौकरानी मिल गई है, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ले मालकिन, पी कर देखें ऐसी मजे की पिंकी एक गिलास में थोड़ा सा पानी लाकर कालू के ऊपर गिरा देती है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मुझ पर पानी गिरा दिया। सॉरी सॉरी मालिक जी, मैं तो जा रही थी कि पानी गिर गया। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। साहिब जी, आपकी पत्नी झरना देखने गई हुई है, बता कर गई है वो शाम को देर से घर आएंगी। उसे आवारा फिरने के सिवा काम ही क्या है? साहिब, एक बात पूछूं? आप अपनी पत्नी से इतना डरते क्यों हैं? आप इतने सुंदर हैं, फिर भी आप अपनी पत्नी से डरते हैं? सच? क्या मैं सच में सुंदर हूँ? मेरी पत्नी ने तो मुझे कभी नहीं बताया। सच? आप जैसा काला कौवा मैंने पहली बार देखा है। ऐसे थोड़ा मैं बिना तनख्वाह के काम पर आ गई हूँ।
तो अब समझा मैं, आप भी बहुत सुंदर हो और शरारती भी। साहिब जी, आप मुझे इस घर से ना निकालना, मुझे आपका घर बहुत पसंद आया है। और मुझे भी तुम्हारी शरारतें बहुत पसंद आई हैं। फिर पिंकी कौवी और कालू कौवा बातें करते रहते हैं। शाम भी हो जाती है। कालू जी, अब आपकी पत्नी आने वाली होंगी, मैं थोड़ा सा काम कर लूं। अगर उसने मुझे आपसे बातें करते देख लिया तो पिटाई हो जाएगी आपकी। पिंकी, सच बताऊं तो तुमने पहले ही दिन मेरा डर खत्म कर दिया है। अब नहीं पिटूंगा मैं गौरी से, तुम देख लेना। मैं नदी पर जा रहा हूँ। कालू जी, आते हुए मेरे लिए अपने जैसी मीठी मीठी एक चॉकलेट तो लेते आना। एक क्या, मैं तो पूरा डिब्बा ही ले आऊंगा। अपनी पत्नी से छुप कर देना, कहीं ऐसा न हो कि आपकी पत्नी देख ले और शक करने लगे। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते क्या? सॉरी सॉरी यार तोते, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। आज तुम मुझे अंधा कहो या जो भी, मैं लड़ूंगा नहीं। पिंकी, पिंकी, कहाँ हो? मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ले ले मालकिन जी, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट हलवा बना कर रखा है, और घर देख ले, मैंने शीशे की तरह चमकाया है। ये कालू कहाँ है? मुझे क्या पता मालकिन जी, आपके पति तो उठते ही बाहर चले गए थे, मैं तो रसोई में थी, आपके लिए हलवा बना रही थी। कालू जी भी घर आ जाते हैं। कहाँ गए थे? जाओ तुम पिंकी, रसोई में जाओ। मैं तो सुबह से नदी पर गया हुआ था। ये तुम्हारे बैग में क्या है? बैग में काका कुछ नहीं, मेरी दवा है। मेरे सर में दर्द था, अभी अभी बुलबुल से दवा लेकर आया हूँ। फिर गौरी सो जाती है और कालू आहिस्ता से पिंकी के पास जाता है। पिंकी, मीठी मीठी चॉकलेट एक नहीं, पूरा डिब्बा। चॉकलेट या सर दर्द की दवा है। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दिन गुजरते गए और पिंकी ने कालू कौवे को अपने प्यार के जाल में अच्छे से फंसा लिया था। फिर एक दिन गौरी जब बाहर से आती है तो कालू और पिंकी एक घोंसले में बैठे हुए थे। उनका मुंह दूसरी तरफ था। गौरी आहिस्ता से बैठ जाती है। पिंकी, तुम्हारी आंखें तो गहरे सागर जैसी हैं। और तुम्हारी पत्नी की आंखें कैसी हैं? चुड़ैल चुड़ैल जैसी हैं आंखें उसकी, हर समय मुझे घूरती रहती है। मक्कार फराडन, अभी निकलो मेरे घर से। मेरे घर को क्या संभालने आई? मेरे पति को ही संभाल लिया। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कालू जी से आंख में मच्छर घुस गया था, वो निकलवा रही थी। तुम कब आई गौरी? चोरों की तरह आती हो, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सब समझती हूँ, मेरी आंखें चुड़ैल जैसी हैं। इसे अभी घर से निकाल दो, नहीं तो मैं अभी अपने मैके जा रही हूँ। मेके? बहुत दिनों बाद ऐसा सुनने को मिला। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? और हाँ, पिंकी कहीं नहीं जाने वाली। जितना डरना था मैंने तुमसे डर लिया, अब मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है। कालू जी, और मेरा नहीं है क्या? तुम जाओ, अपने मैके ही जाओ। कालू, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? एक बार कहा ना, तुम अपने मैके ही जाओ। मैं पिंकी से शादी कर रहा हूँ आज ही, और आज से ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन होगी।
پھر گوری کبھی روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی میں جو گوری کوی کے ساتھ ہوا اس میں دوش کالو کا ہے، پنکی کا ہے یا گوری کا خود؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا، ہمیں انتظار رہے گا۔